Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, as we are preparing for mains, one question is asked by many candidates: how many months current affair we should cover? Now, the most important thing is normally what type of questions we are expecting in the examination. If we go by the past trend, usually the latest questions are more as compared to older current affair. That means if you are able to cover more and more current affair, better it is. Some people may be able to cover 3 months current affair. Some people may be able to cover 4 months current affair. Some people may be able to cover 6 month current affair, 7 months, 8 months, 9 months. So the thumb rule is if you are able to cover 7 months, it is better than if from a candidate who covers 6 months. If you are able to cover 6 months, this candidate is better than candidate who has covered 5 months. Because most question may be recent, but there will be some questions, those are older. So it will depend upon the candidate how much he or she can cover. But your focus should be always preparing backward. That means I have to appear in examination in January. My focus should be 1st December, November, October. Then I should go down to September, August, July, and so on. If my exam is scheduled in January, then my focus should be on January, December, November, October, this way, backward. So revision should also be done backward, and the coverage should also be backward as much as you can. So there is no thumb rule that 6 months is required, 4 months is required, 3 months is required. But most current affair is from recent months, and as it becomes older, still there are some questions. There are examinations where the current affair was as old as 12 months. But I don't suggest you should cover 12 months because this is impossible. But if you can cover 6 months or more, it is an optimum level as far as competitive exams are concerned. And I have suggested you a very good source of current affair. Link is available in description and comment column. Click the link, you will land up on an app. Download the app. Take 2021-22 plan. Apply coupon code AA03. You will have 10% off and access to good quality current affair. Second important area of preparation is banking, financial, economic awareness knowledge. These days, good number of questions comes from banking. And most of the candidates are unable to solve these questions. So if you want to take lead over these candidates, you must cover. And you are lucky that you are a subscriber of a channel where a lot of information on banking is available. So there is a playlist. I am providing link in the description. Watch 15 videos per day. And for your convenience, I am providing link of these 15 videos per day on our Telegram channel. Telegram channel link is available in description, or you can type Anil Agarwal channel. A channel with 44.1 thousand members is the genuine group you can join. So you can prepare like this. This is the way you can prepare for general awareness. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी लोगों का प्रश्न है, सर कितने महीने की करंट अफेयर करें, कब तक की करें. पहली चीज़ तो है करंट अफेयर आपको डेट ऑफ एग्जाम तक कवर करनी है. कितने महीने की करें ये कहना बहुत मुश्किल होता है. जितनी अधिक आप कर सकते हैं उतना महत्वपूर्ण होता है. मीन्स अगर आप 3 महीने की करते हैं ठीक है, 4 महीने की करते हैं उससे बेहतर है, 5 की करते हैं उससे भी बेहतर है, 6 महीने की करते हैं उससे भी बेहतर है, 7 महीने की करते हैं उससे भी बेहतर है. समझने की बात यह है कि एक कैंडिडेट जिसने 7 महीने की करंट अफेयर की है वो 6 महीने वाले कैंडिडेट से बेटर है.
जिसने 6 महीने की है वो 5 महीने वाले से बेटर है, जिसने 5 महीने की है वो 4 महीने वाले से बेटर है। कंपटीशन में हमें दूसरों से ज़्यादा करना है, तो इसलिए जितना अधिक हम करेंगे हम आगे निकल जाएंगे। ये कहना कि 3 मंथ सफिशेंट है, 4 महीना सफिशेंट है, 8 महीना सफिशेंट है, ये लॉजिक नहीं है। हमें अधिक से अधिक करनी है जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो ये मानना कि 6 महीने ही करना है और हमारे पास टाइम ही नहीं है 6 महीने का, पैनिक में आ जाए, वो भी गलत है। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, हमें बैकवर्ड करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन लेटेस्ट होते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन उससे पुराने होंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन उससे पुराने होंगे। तो अगर एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में है तो हमें दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस ऑर्डर में पीछे जाते जाते करंट अफेयर करते चली जानी चाहिए। करंट अफेयर का अच्छा सोर्स मैंने आपको दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसको क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और 2021-22 का प्लान ले लीजिए। कूपन कोड AA03 लगा लीजिए, 10% आपको ऑफ मिल गया, इसकी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद अब इस बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अधिकांश लोगों के ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं है बैंकिंग। तो जो कैंडिडेट बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स को अच्छा कवर कर पाता है वो लीड ले जाता है। और आप लकी हो, ऐसे चैनल के मेंबर हो जहां इस पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रोज 15 वीडियोस देख लीजिए, आपकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। आपकी सुविधा के लिए 15 वीडियोस का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन जाएं, या टेलीग्राम पे जाके टाइप कर लीजिए अनिल अग्रवाल चैनल। जिस चैनल के अंदर 44,100 से अधिक मेंबर हैं वो जेन्युइन चैनल है, उसका हिस्सा बन जाइए, उसको कर लीजिए। तो आपकी क्या क्या चीज़ हो गई अब जनरल अवेयरनेस में? एक हो गया करंट अफेयर, एक हो गया बैंकिंग की नॉलेज। कई बार स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आते हैं, पर बैंकिंग एग्जाम्स में वो कम होते हैं तो ज़्यादा हम उस पर फोकस नहीं करते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। पर ये आपने गलती नहीं करनी है कि शॉर्टकट से करंट अफेयर करके जाए। इन सालों में ये ट्रेंड देखा गया है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस भी सोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी PDF से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको डिटेल के अंदर आपने पढ़ना है और पैनिक में नहीं आना है। जितना कर सकते हैं उतना करिए। मीन्स एक टाइम बांध दीजिए कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ना है। ओवर भी टाइम नहीं लगाना है। ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स की कॉस्ट पे आप जीके पे लग जाएं और पता लगा कि बाकी सब्जेक्ट आपके आउट हो गए। वो गलती नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट को निश्चित टाइम दीजिए और उस सब्जेक्ट पे फिर फोकस करिए। गॉड ब्लेस यू।